एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक सरदार नरिंजन सिंह सभरवाल पिछले दिनी अपने स्वासां ਦੀ पूंजी ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, सरदार इकबाल सिंह साबका सरपंच, सरदारनी बलविंदर कौर, सरदार जसविंदर सिंह, सरदारनी परमजीत कौर, सरदार हरचरण सिंह, सरदारनी जसवंत कौर, हरसिमरन सिंह, अमृत कौर, नवजोत कौर, विश्वदीप सिंह, गुरशेर सिंह, शहबाज सिंह, जगदीप कौर, मनदीप सिंह चीमा, जगजोत सिंह, गुरप्रीत कौर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਨ 1932 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਨ 1952 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਛੱਤੀ ਖੂਹੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਸਹਾਈ मन का हर बिन, कौन सहाई मन का हर बिन, कौन सहाई मन का। मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता पाई सुत बनता। हित लागो सब फन का, हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का। मात पिता पाई सुत बनता, मात
पिता पाई सुत बनता, हित लागो सब फन का, हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। आगे को किछ तुल्हा बांधो, आगे को किछ तुल्हा बांधो, क्या परवाह सातन का। क्या परवाह सातन का, क्या परवाह साधन का, क्या परवाह साधन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता पाई सुत बनता। हित लागो सब फन का, हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। कहाँ बिसासा इस पांडे का, कहाँ बिसासा इस पांडे का। इतना लागे ठन का, इतना लागे ठन का, इतना लागे ठन का, इतना लागे ठन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता पाई सुत बनता। हित लागो सब फन का, हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। सगल तरम पुण्य फल पावो, सगल तरम पुण्य फल पावो, सगल धर्म पुण्य फल
बाछो सब जन का। कह कबीर सुनो रे संतो, एह मन उड़न पंखेरु बन का। एह मन उड़न पंखेरु बन का। सगल तरम पुन फल पावो, सगल तरम पुन फल पावो। तूर बाछो सब जन का। तूर बाछो सब जन का। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, एह मन उड़न पंखेरु बन का। एह मन उड़न पंखेरु बन का। उड़न पंखेरु बन का। एह मन उड़न पंखेरु बन का। हर बिन कौन सहाय मन का। हर बिन कौन सहाय मन का। मात पिता भाई सुत बनता। 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 हित लागो सब फन का। हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाय मन का। हर बिन कौन सहाय मन का। हर बिन कौन सहाय मन का। मात पिता भाई सुत बनता। मात पिता भाई सुत बनता। हित लागो सब फन का। हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाय मन का। हर बिन कौन सहाय मन का। मन का बिसारे राम राम। दान बिन से जम स्यों बड़े काम। दान बिन से जम स्यों बड़े काम। दान बिन से जम स्यों बड़े काम। धन बिन से जम स्यों परे काम। मन कमा बिसारे राम राम। मन कमा बिसारे राम राम। धन दारा
ले। कछ संग न चाले समझ ले, कछ संग न चाले समझ ले। मन कदा बिसारे राम नाम, मन कदा बिसारे राम नाम। एक जग तूए का पहाड़, एह जग जग तूए का पहाड़। ये जग तूए का पहाड़, तैसा चा मानिया कि ये विचार। तैसा चा मानिया एक विचार। तैसा चा मानिया एक विचार। मन कदा बिसारे राम नाम, मन कदा बिसारे राम नाम। एक भगत नारायण हुए संग, एक भगत नारायण होए संग। एक भगत नारायण, एक भगत नारायण संग। एक भगत नारायण हुए संग। एक भगत नारायण होए संग। एक भगत नारायण होए संग। एक भगत नारायण हुए संग। एक भगत नारायण संग। एक भगत नारायण हुए संग। एक भगत नारायण हुए संग। कबो नानक भजते एक रंग। कबो नानक भजते एक रंग। कबो नानक भजते
मन कवा बिसारे ओ राम नाम, मन कवा बिसारे ओ राम नाम। तन बिन से जम स्यो परे काम, तन बिन से जम स्यो परे काम, तन बिन से जम स्यो परे काम। मन कवा बिसारे ओ राम नाम, मन कवा बिसारे ओ राम नाम। मन कवा बिसारे, मन कवा बिसारे, मन कवा बिसारे ओ राम नाम। हर हर नाम जपन्ते आकस न कहे जम कान, नानक मन तन सुखी गोए अंते मिले गोपाल। हर का नाम ते आए के गोवरिया पार, कर्म लखन ते पाए रो सुहान। मन तत्रे बड़ माने आए अमृत बन पाए, दिल साधु सुख उपजे लती संग शान। नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई, नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ध्याए के गो गोगरिया पाई, कर्म लिखन ते पाइए इहे रुत सगाई। वण तृण त्रिपावन मौलिया अमृत बल पाई, मिल साधु सुखी उपजै लती सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ना पाई। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए हमें व, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुर दे। पंजे बद मामली कर सचटो, अपनी जन जपायन विद्य पढ़ो। रूप सुख समिट गए नित माने रो, रहन नाम ते आइंदा फिर पाए नमो। जिसते उपजे नानका सोई फिर गो, जिसते उपजे नानका सोई फिर गो। पंजे बड़े महाबली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपाइन बिच दइयो खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवाने रोआ, दिन रैन नाम ध्याएंदा फिर पाए नाम। जिसने उपजया नानका सोई फिर गोआ, जिसने उपजया नानका सोई फिर गोआ। नानक किसनो या किए बिन पूछिया ही ले जाए। नानक किसनो या किए बिन पूछिया ही ले जाए। पूछे
रोया किए बिन पूछे आएगी ले जाए रज न कोई जीवया पहुँच न चलिया कोई रज ना कोई जीवया रज कोई जीवया पहुँचना चलिया कोई रचना कोई जीवया पहुँचना चलिया कोई पहुँचना चलिया कोई रज न कोई जीवया पहुँच न चलिया कोई ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती की पत होए ज्ञानी जीवे ज्ञानी जीवे ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती पत होए सुरती पत ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती की पत होए बिन पूछे आई ले जाए बिन पूछे आई ले जाए बिन पूछे ले जाए बिन पूछे ले जाए नानक कैसे लोया किए बिन पूछे ले जाए सद पे सदा सदा
ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਐ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਐ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। आओ जितने माई भाई संगतां गुरु की हजूरी विच बैठे हाँ संगत के रूप में 1-2 मिनटां लई मैं हमेशा बेनती करदा सच्ची श्रद्धांजलि सिमरन है ते जितनियां माइयां भैणां बजुर्ग बच्चे बैठे हैं कोई रसना ऐसी खाली न रहे। केवल 2 मिनट लई सारे इस परिवार दे भले लई ते उन्हां नूं सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करते गल्लां नाल नहीं सिमरन करके सारे भेंट करिए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ये यात्रा है भाई, असीं नूं कहने संसारिक यात्रा, जीवन यात्रा। ते जदों कोई शरीर चला जाता सी, चढ़ाई कर जाता सी, ते आम तौर पर सियाणे बजुर्ग कहते सन समाधि च चला गया, समाधि लै लई। ते आम तौर पर तुसीं वेख्या होना भी जिथे कई शरीरां नूं संस्कार किया जाता सी जां कोई दफन किया जाता सी ते उहनूं अज भी सियाणे लोग कहते समाधां समाधि। वो जिहड़ी समाधि है, एक ध्यान दिओ जरा, उस शरीर की जिहड़ी अंतिम यात्रा है, शरीर पूरा होया, शरीर त्यागया ते जिथे उस शरीर नूं संस्कार किया गया उन्होंने कहते समाधि, समाधां। ते गुरु साहब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर समाधि दसी है जिहड़ी जिउंदे जी दसी, आफ्टर डेथ नहीं, मरण तो बाद नहीं, जिउंदे जी समाधि दसी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ बहुत सारिया मेरिया भैणां वीर बच्चे इत्थे बैठे जिन्होंने मैं जानना ਜਿਹੜੇ नितनेमी हैं श्री सुखमनी साहिब जी। और सतगुरु बड़ा सुंदर कहते ने सुन समाद अनहद तहनाद। सुन समाद वो की है? एक यात्रा है शरीर दी, दूसरा लड़ाई है मन नाल आत्मा की यात्रा। ते गरीब नवाज पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मैनू माफ़ी दिओ मरण मुक्त किते नहीं लिखिया। सतगुरु कहते गुरु क्या लाला तैनू मैं जीवन मुक्त करांगा, जीवन मुक्त, मरण मुक्त नहीं। सगों गुरबाणी ने तो ऐसा क्वेश्चन किया बाणी च भगतां राही, कहते मरण मुक्त किन पाई? कहते ने मरण तो बाद मुक्ति किन्ने वेखी है? किसी ने पाई है? किसी ने नहीं। नहीं, जीवन मुक्त।
ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਥ, ਮਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਆਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿਸ ਦੀ ਏ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌੜਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉ ਦੋਏ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਏ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਜੀ ਬਿਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
माया की गल नहीं, सियासी गल नहीं, हमेशा सुरत की गल पुछते सन, शब्द की गल पुछते सन। वो हरफन मौला इंसान, वो फ्लावर बुके इंसान जिदे च बहुते रंग सन। तो मैं हैरान हाँ, आ थोड़े चिर पहला भी जदों ये बैड ते सन, थोड़ा चिर इदा पे तो मैं घर गया तो मेरा सवाल यही हुंदा सी दर्शन करने वास्ते। मैं तो माता जी तो सिर्फ भाजी सन। तो मैं उस वेले भी पूछया सरदार जी उन्होंने, मैं क्या सरदार जी बाकी गल्लां छड्डो, सुरत का की हाल है, ध्यान दिओ जरा, सुरत का की हाल है। तो मैं हैरान हो गया कि ऐसे कंडीशन विच भी मैनू कहते हाथ जोड़ के मन भर लिया, कहते बाबा जी डींग ना किते वज जाए, सुरत बड़ी वधिया, बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। हुण इस अवस्था विच पिया होया बंदा भी इन्नी चढ़दी कला विच होवे, इन्नी मौज विच होवे, इहदा अंदर कोई, इहदा मतलब भी अंदर कोई गल है ना, इन्हें खलारियां विचों भी अपनी सुरत नूं किवें बचा के रखदा है, किवें निर्लेप रखदा है, किवें सारियां दे विच रहिंदियां भी वखरा रहिंदा है। तो मैं एक दो एग्जांपलां दे दियां। एक तो उदाहरण है, मैं अखां नाल दर्शन कीते, मेरे नाल मुलाकात हुई। तुसीं पुछोगे इदां दे अज संसार च हैन ने जीवन मुक्त पुरख? भाई अजीत सिंह दी टंडन नगर एड्रैस दे सकना। धन गुरु रामदास जी दे धोबी कहते सन लोग उन्होंने। 25 साल लगातार गुरु रामदास जी दर दे सुख आसन वाले कपड़े लै आने, घर विच धो के प्रैस करके लै जाने, ते जेड़े थल्लियों निकलने लै आने, दूजे दिन फिर प्रैस करके दे के आने। 25 साल लगातार मैनू कहते सन बाबा जी गुरु रामदास ने एक भी नागा नहीं पैण दिता 25 सालों च। गुरु रामदास जी का धोबी कहते सन। तो तुसी हैरान होवोगे, दरम्याना जा परिवार साइकिल ते जाना ते साइकिल ते आना, ना बीमार होए ना किते बाहर गए, ते 25 सालों च धन गुरु रामदास के वस्त्रां की सेवा करदियां निभ गई। अखीर ते आना मौत आने वाली सी। ये वेखी गल है, सुनिया सुनाइया साखियां नहीं। मौत का समा आ गया। मेरे को एक सिंह आया, कहते जी तुहानू भाई जीत सिंह याद करते टंडन नगर वाले। मैं गया उत्थे, अंदर शरीर बैठे सी, कहते जी इन्होंने बाहर कढ़ दिओ, तुहाडे कल्लियां नाल कोई वचन करना है। मैं कहा ठीक है। वो बाहर चले गए, हाथ जोड़े, मैनू कहते जी बेनती तुहाडे चरणा च एक करनी। मैं क्या दसो मेरे क्यों? गुरु के चरणा च करो। कहते नहीं परिवार तुहाडे आखे लगता है जरा। मैं क्या दसो की गल है? कहते जी अंतिम समा आ गया। ध्यान दिओ गुरसिखो, अंतिम समा आ गया। मैं क्या अंतिम समा? मौत का सुनिया आ गया जी, जान का समा। मैं क्या फिर? आंदे गुरु रामदास महाराज जी दस के गए ने, आ गए ने भी भाई तेरा समा आ गया, अंतिम समा। तो मैं क्या फिर की करिए? कहते जी परिवार थोड़ा जिहा मैनू तंग करता है, एवें गल्लां गुल्लां च पाउंदा, ते इन्हां नूं कहो मैनू गल्लां च ना पाउण, मेरा ध्यान ना किसी होर पासे खिंड जाए। तो साध संगत चलो प्यार नूं मैं परिवार नूं समझाया, तो वो साध संगत जी चलो लंबी चौड़ी मैं गल ना करा, चलो मन गए। 7 दिन बाद वो चढ़ाई करके तो परिवार नूं मैं पुछया किवें गए ने? कहते जी वाहिगुरू 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 करदियां बस ढोल आके बैठे सन ते शरीर त्याग दिता। इनू की कहोगे? जीवन मुक्त ना कहोगे? तुहाडे शहर विच मैं उदाहरण दिना एक, किसी नूं पता होवेगा भावें ना किसी नूं पता होवेगा, तुहाडी बरादरी श्री रामगढ़िया बरादरी नाल संबंध रखने वाले भाई सुरजीत सिंह जी जेड़े DC दे सुपरडेंट रहे ने, तुसी जानते होवोगे बहुत शरीर गल नहीं सी करते, बड़ी गुप्त आत्मा। और मैं समझना साडे जिले दे महापुरख ने एडी वड्डी आत्मा। मास्टर निरंजन सिंह हुणां दे चाचा जी, परिवार नूं भी बहुता नहीं सी पता। दास कोल कई बार आ जांदे सी कन्या, मैं भी उन्हां कोल चला जांदा सी, कई बार गुप्त बचन मेरे नालों कर लैंदे सी। उन्हां ने भी साध संगत जी एक बेटा उन्हां दा सी ड्राइंग टीचर, बीमार हो गया, बैड ते पिया सी। ਉਹਦੇ बारे में पुछया, मैं क्या बाऊ जी ये की गल है? ਉਹਦੇ बारे मैनू दसिया सारा उन्होंने। आंदे पर गल नहीं करनी जिन्ना चर मैं जीवना है, मेरे हुंदियां नहीं गल करनी। मैं क्या ठीक है जी। ਉਹਦੇ बारे दसिया, पिछला जन्म ਉਹਦਾ दसिया, क्यों आया मेरे घर ये भी दसिया। कहते 1 साल बाद इन्हें चढ़ाई कर जानी, बचना नहीं इन्हें। भाई सुरजीत सिंह दा बेटा चढ़ाई कर गया। माता जी कोल बैठे सन एक दिन,
वो कहते बेटा चला गया, तुसी ढिले मठे रहिंदे हो, मेरा कुछ पता नहीं। हथ के हाथे हथ मार के कहन लगे भलिए तू मेरे नालों पहला जाना है, तू हमें फिक्र करी जानी। ये कौन ने लोग? भाई सुरजीत सिंह होनी डरते डरते एक दिन मैनू कहन लगे, कहते जी इउं लगता है ऐतकां काम मुक जाएगा। जीवन मुक्त महापुरख, मैं उदाहरण 5-7 दे सकना है। इंग्लैंड में रिकॉर्डिंग मौजूद है। ज्ञानी संत संग जी मस्कीन एक गुरु का सिख 1 साल पहला उन्होंने कहता सी आउंदे साल में अंतिम अरदास ज्ञानी जी तुहाडे कोलों कराउणी। इंज होया, अगले साल गए, अखंड पाठ की आरंभता की अरदास ज्ञानी जी ने की। अंतिम समय जो अखंड पाठ साहब का भोग पिया, अरदास होई, ज्ञानी जी ने की, हुक्मनामा होया, उस सिख ने डंडौत करके गुरु ग्रंथ साहब के मत्था च मत्था टेक के शरीर छड़ दिता। इनू की कहोगे? ओए प्यारिओ, ये सैल्फ एनालिसिस करो, मेरे वल ना वेखो, दूजे वल ना वेखो, तीजे वल ना वेखो, छड़ दिओ निंदिया झूठ घंटियां बदी करन तो अपना सैल्फ एनालिसिस करो, अपने अंदर झात मारो, साडी सुरत कित्थे खड़ी है। तो मैं बेनती समाप्ति कर दिया। प्यारो एक गल याद रखो, जे सुरत सिमरन विच ना रही, मैनू माफ़ी दो मैं स्टेज तो कहना है, जे सुरत सिमरन विच ना रही, मैं होवां भावें को अरबां खरबां पति को कोई होवे, कोई दुनिया का बंदा निरंकार दे विच अभेद नहीं हो सकता। मैनू खुशी है, मैनू दस्सिया बीजी हुणां ने भी अंतिम समय भी सरदार जी वाहिगुरू 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 जपदियां श्वास त्यागे ने। ये तो बाकी गुरु जाने, पर निशानियां चंगियां, जीवन चंगा है। सारे पक्षों तो गुरु साहब ने उन्हें बख्शिश की सी, रहमत है परिवार से। बहुत लंबे समय तो मैनू परिवार नाल बड़ी मेरी नेड़ता रही, मैं बड़ा क्लोज रहा, घंटियां बदी उन्होंने संगत मैनू मिलती रही तो मेरी वो करते रहे। अंतिम समय फिर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे परिवार ਨੂੰ गुरु साहब सच्चे पातशाह को बेनती करदा भाणा मनण दा बल बख्शण, सारे परिवार नूं होर गुरसिੱਖੀ सेवा निम सिमरन नाम दी दात बख्शण, ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी प्यारिओ याद रख लो, वो चले गए असीं चले जाना। अज असीं उन्हां दी अरदास बैठे, कल नूं साडी अरदास इदां ही उन्होंने बैठे होना सारिਆਂ बाकियां ने। ते उदों पहिलां आपां गुरु कोल बेनतियां करके तरले लैके अपना जीवन सफल कर लीए, नहीं तो पता नहीं जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया देश लम्मे, पता नहीं किन्ने के गेड़े वजने हैं, ये मुक नहीं जे सकते। नहीं तो आओ सतगुरों को बेनती करके झगड़ा नवेड़ लईए इस जीवन का, तो तुहाडा ते मेरा भला होएगा। भुलां चुकां दी मुआफ़ी, प्यार विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आवे नानका सदे उठी जाए, मरण लिखाए ते मंडल में आए। जड़ा भी इत्थे इंसान आया उन्हें एक दिन चले जाना, पर वो जान तो बाद लोग लेखा जोखा जरूर करते हैं कि इस इंसान ने धरती ते आके अपने परिवार लिए की कीता, अपने नगर लिए की कीता, अपने जिले लिए की कीता। वो लेखा जोखा हर एक दा हुंदा ते लोग करते हैं। मैं 30 साल तो इस परिवार में मेरी नेड़ता रही है। सरदार नरिंदर सिंह जी मेरे सत्कारयोग पिता समान सी, पर मेरे उन्होंने 11 वर्गियां गल्लां सीगियां। वो फेंस का काम करते सी ते मैं भी उत्थे जाके बैठता सीगा ते जो कहना उन्होंने मन लेना। अज मैनूं याद आउंदा, मैं राती भी सोचता सी कि बड़े चंगे इंसान सीगे सरदार नरिंदर सिंह जी, सारे चल जाना। अज मैंने जीवनी पढ़ी कि कल्याणपुर पिंड चों जन्म होया, उस तो बाद वो धारीवाल सैटल्ड हो गए। उन्होंने रेल में भी नौकरी की, उतों नौकरी छड्ड के फिर वो वूलन मिल धारीवाल दे विच भी नौकरी की। उस तो बाद उन्हें अपना बिजनेस शुरू किया। अज तुहाडे सामने कोई दस्सण की बहुती लोड़ नहीं। सब्बरवाल परिवार का नाम पूरे जिले में है, मैं समझदा पंजाब में ना इन्हां दा। ये 5, 6, 7 भरा सी, बहुत मेहनत की है। मैं इस गल की सब्बरवाल परिवार नूं वधाई देना। चलो सारे जाना आसा कड़ा बैठ रहना, बड़ी वो चंगी तुहानूं सेहत दे के गए ने, चंगा तुहानूं सिक्ख्या दे के गए ने। अज ठाठा मारदा जिहड़ा परिवार है सब्बरवाल, बड़ी इस गल की खुशी है। अज दा इकट्ठ वेखो, ठाठा मारदा इकट्ठ है। मैं बहुता लम्मा नहीं जाना चाहता क्योंकि समा बहुत हो गया, बुलारे बहुत ने। मैं ये गल कहनी चाहना
कि सानू भी कोई ना कोई सिक्ख्या लैके जानी चाहिए है भी असी भी कुछ समाज करके जाइए। लोग सानू जाने तो बाद जो सारे चंगा तो नहीं कहिंदे पर कुछ लोग सानू चंगा जरूर कहन। ये मेरी बेनती है। मैं गुरु चरणों च जोत दी अरदास बेनती करांगा कि सच्चा पातशाह सरदार नरिंदर सिंह जी नूं अपने चरण निवास बख्शियो ते पिछे परिवार नूं भाना मनण दा बल बख्शो ते परिवार दिन दुगनी रात चौगी तरक्की करे। गुरु महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी सारे परिवार वाले रिश्तेदार संगी साथी नगर वाले इलाके वाले सरदार निरंजन सिंह होरां दी अंतिम अरदास के मौके पर इकट्ठे हुए हैं जो कुछ दिन पहले संसार को सदीवी विछोड़ा दे गए। जो भी मनुख दुनिया च आंदा है उन्हें डेफिनेट एक दिन इत्थों जाना है। महाराज ने बाणी च उच्चारण किया जो आया सो चल सी सबको आई वारी है। हर एक की वारी आनी है। ये पक्की गल है। सरदार निरंजन सिंह होरां दी जिंदगी बाबत तुसी सारे सज्जन मित्र जिन्हें इत्थे बैठे हो बहुत चंगी तरह जानते हो। उन्होंने मेहनत नाल अपनी हलीमी नाल अपने सुभाव करके ये सारे परिवार ने बहुत तरक्की की है। जिवें सतनाम सिंह दस रहे सी कि 7 भरा सन और वही टब्बर तरक्की करते हैं जिन्हां च इतफाक हुंदा है। इन्हां च इतफाक बहुत सी। पिंड चों उठ के धारीवाल शहर में आए। अज अद्धा धारीवाल शहर इन्हां सारे भरावां ने सांभिया होया है। बहुत इन्हां दा लोकां नाल प्रेम है। इन्हां दी तरक्की का राज इक्को ही है कि बहुत मेहनती सी ते बड़ा आपस दे विच इन्हां दा इतफाक सी। जिस परिवार में इतफाक होता है उही परिवार तरक्की करता है। अज के युग च इतफाक जिहड़ा वो बहुत औखा होंदा है। इन्हां दे गां बच्चियां तक जदों वड्डे होए आ फिर अड्ड होए आ, नहीं तो सारे भरा इकट्ठे रहे हैं। सो मैं बहुत कुछ ना कहता होया यही बेनती करनी चाहता है कि जाना सब ने। जिहड़ा मनुख दुनिया में चंगे काम करके जाता है दुनिया के लोग उन्हें याद करते हैं। हर बंदा कमाई करता है। बहुत लोगों को पैसा है। मैं समझना कि जिहड़ा बंदा रब नालों टुटा हुंदा है परमात्मा नूं याद नहीं करता वह पैसे किसी काम नहीं है। ये ठीक है कलयुग है। अज इंसानियत की कदर घट है पैसे की कदर ज़्यादा है। ईमानदारी की मेहनत की सच्चाई की कीमत घट है। जिहड़े बंदे को माया चाहे पापां की कमाई होवे ओहदी इज्जत ज़्यादा है। पर परमात्मा की दरगाह में जो जाना है उत्थे कोई सिफारिश नहीं चलती। इत्थे धक्का भी चल जाता है इत्थे सिफारिश भी चलती है। उत्थे अमलों ते होने नबेड़े जात तेरी किसी नहीं पुछनी। जिहा बीजे सो लूने कर्मा संदड़ा खेत विच दुनिया सेव कमाइए तो दरगे बैसन पाइए। जिहड़ा दुनिया च चंगे काम करता है उन्होंने परमात्मा की दरगाह दे विच जाके शर्मसार नहीं होना पैंदा। उन्होंने चंगी थां मिलती है। और मैनू पूरा भरोसा है कि सरदार निरंजन सिंह होरां ने सारी जिंदगी 10 नौहां की किरत की है। किरत बाबे नानक ने सानू दसी सी। अज असीं किरत भुल गए हैं। जीवन का मनोरथ केवल जिहड़ा है वो बच्चे पैदा करना जमीनां खरीदनियां जायदाद बनाना चौधरा लैनियां तक नहीं है। ये इंसानी जामा बड़े पूर्ण भागां नाल मिलदा है। जिहड़े बंदे दुनिया में आके चंगे काम करते हैं उन्हां दा जीवन सफल है। नहीं तो अपने बच्चों वास्ते तो पशु पंछी भी जीते हैं। फिर इंसान तो उन्हां च की फर्क है। इंसानी जामा तुहानूं मिलिया जिहड़े बंदे दुनिया में आके 10 नौहां की किरत करते हैं परमात्मा का नाम लेंदे है तो किसी के काम आउंदे है उन्हां दा जीवन सफल है। सो मैं समझना कि
ਸੱਭਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏ। ਬਾਪ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਸਜੀਦਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ में आके क्या तुद कम कमाया। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਏ मैंने वो दिखाते ने। ये सजीदा मेरा इस जग में आके क्या तुद कलम कमाया, के कलम कमाया तुद सीधा जा तू जग में आया। संसार ते आके अपनी जो कीता की है ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਪਦਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੁਤਬਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਜ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सीगा। एक छोटी जी गल दसी, गराही करने गए तो एक डॉक्टर साहब को चल गए। अं ज़्यादा मैं समा बोलने लवांगा तो 2-4 मिनट दसा जो उन्होंने हकीकतों की। अं चल गए डॉक्टर साहब को गराही लैन। डॉक्टर साहब तो मिले ने गराही देनी सी, वो मिसेज मिल गई, कहते मैं गुजरने वास्ते पैसे नहीं देने है, मेरे को इलाज लूज भी करा गलो मैं पैसे नहीं देने। उस वेले चंद सिंह तलवाड़ साहब का मन थोड़ा टुट गया थोड़ी जिहा। मैनू कहने लगे ज्ञानी जी, इन्होंने ज्ञानी कहते होंगे ज्ञानी नरिंदर सिंह, क्यों ना ज्ञानी अगे लै गए आप। दिल दलेर है, माया पक्षों भी माता की बख्शिश हैगी आ, तो लिंक बड़ा वड्डा इन्हां दा, लिंक बहुत वड्डा है, क्यों ना इन्होंने अगे लाइए। इदा ही होया, ज्ञानी पास बेनती की जाके वो आ गए, उन्होंने प्रधानगी की है काफ़ी लंबा समा। गुरदास सिंह सभा की सिर्फ लैंटर ही पिया साढ़े को A to Z पूरी तैयारी उन्होंने की। उन्होंने तन मन धन नाल सेवा की है, गुरुद्वारे देना सेवा आप खुद करनी जाके। शब्द गुरु वालिए दो जहान की पवित्र गोद आज सरदार नरिंदर सिंह सभरवाल की अंतिम अरदास। जुड़ बैठे रिश्तेदार साहबान, सज्जन मित्र, आओ फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया।
ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ कि असल जीवन मुक्ति है जो साढ़े सत्कारयोग अंकल जी वो जीवन मुक्त होके गए ने। क्योंकि अज के युग दे विच नाम बाणी दे नाल जुड़ना, वो भी कम करदियां कि सारा कारोबार भी वेखना, फिर भी नाम वास्ते नाम दे नाल शब्द नाल जुड़ना, सूरत नूं जोड़ना बड़ी वड्डी गल है। अंकल जी के जीवन दे विच जिन्ना इन्हां राजनीतिक कद सी, समाजिक कद सी, बिजनेस भी बहुत वधिया उपर लैके गए। जे इन्हां दे जीवन ते बोलण लगो तो बंदा सारा दिन बोलदा रहिंदा, पर समय की नजाकत वेखदिआं साडे प्रधान सरदार गुरबिंद सिंह जी बब्बेहाली ने आउणा सी जिला प्रधान, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के शुरू तो ही बड़े बड़े वड्डे अहुदियां ते रहे, जिले के वाइस प्रधान भी रहे, सरकारां दे भी इन्हां श्रोमणी अकाली दल दे आनंद माणे। सरदार बब्बेहाली साहब ने आउणा ही, पर सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने उन्होंने सद लिया। उन्होंने मैनूं कहा कि जाके मेरे वालों सब्रवाल परिवार नूं हौसला देना है, जो श्रोमणी अकाली दल की पग है वो इन्हां नूं सौंप के आउणी है, क्योंकि पार्टियां हमेशा अपने वर्करां दे नाल ही जींदियां ने। इस तरह के वधिया वर्कर, वधिया जथेदार जिन्हां दे मन दे विच पार्टी के प्रति कभी भी रोस नहीं आया, चाहे पार्टी च कोई भी हालात बने, ये हमेशा अकाली दल के नाल रहे ने, हर वेले मोढे नाल मोढा जोड़ के रहे ने। बाकी पिता बारे गल की सी छोटेपुर साहब ने भी कि उन्होंने बड़ा वधिया सारे परिवार नूं इतफाक नाल रखिया। इतफाक हमेशा उत्थे रहिंदा जिथे गुरु रामदास की बख्शिश होए, क्योंकि उहदी बख्शिश तो बिना इतफाक नहीं रह सकता। जे अज सारे सब्रवाल परिवार का नाम धारीवाल दे विच अद्धे धारीवाल दे मालक ने, तो सिर्फ गुरु रामदास की बख्शिश के सदका ने, क्योंकि परमात्मा की बख्शिश के नाल इतफाक रहिंदा। बाकी पिता तो वधिया सलाहकार कोई नहीं, शुभ चिंतक कोई नहीं। मेरे भरावां ने अज ये गल दी हमेशा अज तो बाद इन्हूं कमी रड़कनी है, जदों भी किते कोई सलाह लैनी है तो पिता नाल दा सलाहकार कोई नहीं मिलना। ठीक है, चाचे ताए भैन भरा सारे हुंदे ने, पर जो सलाह पिता ने देनी है, जिन्ना शुभ चिंतक पिता उन्ना कोई भी नहीं होना। मैं धारीवाल च अंकल बारे सुनिया, सब्रवाल साहब बारे, कि वो एक यारां दे यार सी, भरावां दे भरा सी, सज्जणां दे सज्जण सी। पंजाबी का एक शायर मोहम्मद बख्श लिखता है, यार यारां दा दर्द वंडाउंदे, वीर वीरां दियां बावां, बाप सिर दा ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। बाप मरे सिर नंगा होवे, बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर बाजों कंड खाली, मोहम्मद बख्शा मावां बाजों कौन करे रखवाली। बाकी मेरे भरावां ने कारोबार च रुझ जाना, पर जदों किते मेरी भैन ने इत्थे आया करना है, उन्होंने बाप की गलवकड़ी का निग नहीं मिलना, क्योंकि प्यो ते धी का रिश्ता एक बेमिसाल रिश्ता है दुनिया दे विच। दुनियावी बंदे ने मुंडे के कामां च रुझ जाते हैं, पर जदों किते साडी भैन ने आया करना, उन्होंने ये कमी हमेशा खलदी रहनी। मैं अपने वालों अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों अंकल नूं शरधा दे फुल भेंट करदा, परमपिता परमात्मा के चरणों च अरदास करदा कि इस विछड़ी रूह नूं अपने चरणों च निवास बख्शी, पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शी। आओ सारे मिलकर अरदास करिए। कहत कबीर सुनो रे संतो, खेती करो नबेड़ा, अब की बार बख्श बंदे को बौर ना भवजल फेरा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी दे हुक्म अनुसार जेहा चीरी लिखिया तैहे हुक्म कमाए, घले आवे नानका सदे उठी जाए। इन्हां महावाकां अनुसार कुछ दिनों तो भाई नरिंजन सिंह साबरवाल जितनी आप जी ने सवासां की पूंजी बख्शिश की सी, मात लोक की यात्रा करते हुए परलोक सुधार गए सन। उन्हां दी रूह की कल्याणता के निमित्त उन्हां दे गृह विखे धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड जाप आरंभ करवाए गए। परसों रोज तो संपूर्णताइयां हुईयां। अपरंत गुरुद्वारा भोरा साहिब विखे अंते सतगुरु बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो, निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़े प्राण जियो। दे महावाकां अनुसार कीर्तन कथा होया है, 6 पौड़ियां आनंद साहिब दी बाणी दा जाप होया है। फल आदेश उस रूह नूं पहुंचाउणा, चरणां च निवास बख्शिश करना।
ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਸਤਾਂ ਬਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛਕੇ, ਆਪ ਜੀ का नाम जपे सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह उस रूह ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮਨਾਵੇਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਤ ਕਰੂ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਆਈ ਭਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹਿ ਚੁਕੈ। ਗੁਰ ਇਹੋ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ, ਹਰ ਕੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹਿ ਚੁਕੈ। ਗੁਰ ਇਹੋ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਕੀਐ, ਰਾਮ ਸਰਣ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਜੋਗ ਜਗ ਨਿਰਫਲ ਤੇ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਬਿਸਰਾਵੈ। ਮਾਣ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ को पर हर, गोबिंद के गुण गावै। कहो नानक ए बिद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। मान मोह दोनों को पर हर, गोबिंद के गुण गावै। कहो नानक ए बिद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। वाहिगुरु जी का खालसा,